Hello everyone. So let's start with the heat transfer. So first of all, what is heat? Heat is a form of energy like kinetic energy, potential energy. Heat is also form of a energy. Okay, so you must have heard the term heat in two subjects, thermodynamics and heat transfer, of course in power plant and other subject also. But we generally discuss and talk about the heat in thermodynamics and heat transfer. So what's the difference? So first of all, the unit heat is first of all denoted by Q. Okay, so in thermodynamics we talk about the unit is joule, if you have noticed, and here the unit is joule per second, that is what, but we write joule per second. Okay, then main one thing that you have to remember, that in thermodynamics we talk about the amount of heat. Why amount of heat? In thermodynamics we are talking about the stabilization or equilibrium. Okay, so if a body is in one state, okay, A state, this is equilibrium 1, and it have to transfer to equilibrium 2, that is B state. So how much energy we have to give, or we have to take out from the body? So that kind of question comes in the thermodynamics analysis. Okay, but here in heat transfer we are talk about the rate of heat transfer. Okay, so we generally talk about the rate of heat transfer, so both have their significance. So at one point we talked about the amount of heat required, and the second is rate of heat transfer. Okay, so this is the basic difference you need to understand. Okay, then if you generally see the governing principle behind the heat transfer, the governing principle behind the heat transfer means any either you take it in conduction, convection or radiation. So it generally, you have seen that temperature, one temperature is high temperature, right, and another is low temperature, and heat generally transfer from high temperature to low temperature. Why? It is a significance that at high temperature we are having more heat energy, and at low temperature we are having less heat energy. अगर आप देखें, so heat is transfer from high temperature to low temperature and from low temperature to heat high temperature. But अगर आप completely देखें कि maximum heat कौन lose कर रहा है, कौन gain कर रहा है, so high temperature body will lose the heat and low temperature body will gain the heat. So हम generally बोलते हैं कि heat is transfer from high temperature to low temperature. सो इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल गवर्न करता है इस ट्रांसफर को? सो दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो थर्मोडाइनमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट अगर आप कर चुके होंगे, सो यू मस्ट नो द क्लॉसियस स्टेटमेंट दैट जो जो हीट होता है ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है. ठीक है, और हम जो सेकंड लॉ को यही बोलते हैं कि इट इज़ अ क्वालिटी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज बेस्ड ऑन क्वालिटी. क्वालिटी के ऊपर ये करता है, नॉट अ क्वांटिटी बेस्ड. क्वांटिटी बेस्ड इज द फर्स्ट लॉ, सो द सेकंड लॉ इज क्वालिटी बेस्ड. सो दिस इज द गवर्निंग प्रिंसिपल. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि द हीट ट्रांसफर governing principle behind any mode of heat transfer is Clausius statement of second law of thermodynamics. Okay, now we will talk about the modes of heat transfer. So we will discuss the basic things, okay, about the conduction, convection and radiation. So first we will talk about the conduction. So you must have seen the conduction, like conduction का एक best example देते हैं. Okay, you have a rod, a metal rod or any rod. Metal, first one is metal, सेकेंड वन इज़ वुड. ओके, और इसी को आप इस तरीके से, यहाँ पर फायर है यहाँ पर. ओके, दिस इज रेड कलर इज फायर. ओके, एंड यू हैव टच्ड इट हेयर, योर फिंगर इज ऑन दिस साइड. सो अगर हम देखेंगे कि मेटल के साइड, जब हम मेटल को टच करते हैं, जब उसका एक एंड फायर पे है, हम दूसरे एंड को टच करते हैं, सो वी फील वार्म और हीट, और हमें हमारा हाथ जल जाता है अगर लेमन टर्म में बोलें. बट जनरली जो वुड होता है, प्लास्टिक होता है, ओके, कुछ टाइप के सिरेमिक्स होते हैं, तो वो हीट नहीं होते हैं. हम जनरली इसको पकड़ के रखते हैं, जैसे कि जो यूटेंसिल्स होते हैं हमारे किचन्स में जो मॉम लोग यूज़ करती हैं, सो उसके अंदर जो यूटेंसिल्स का जो पकड़ने का हैंड होता है वो प्लास्टिक्स का होता है और वुडन का होता है. ओके, सो ये चीज़ें आप हमने गौर की होंगी, ऐसा क्यों? मेटल
ही गर्म क्यों हो जाता है, वुड क्यों नहीं गर्म होता है. सो लेट्स सी द फिनोमिना. काफ़ी लोगों को पता होगा, पर प्लीज़ लिसन व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सो इफ़ यू ट्राई टू हीट दिस बॉडी, द ब्लैक पार्ट इज अ बॉडी, ओके, एंड यू आर हीटिंग इट फ्रॉम वन एंड, so the heat will transfer from this end, first end to second end. So this is known as the phenomena by which the heat will transfer is known as conduction. Okay, so conduction takes place by two methods. First one is, if you see at the molecular level and microscopical level, so first the heat transfer is due to free electron transfer. Electrons are transfer, so due to that heat also transfer. The second form is molecular lattice vibrational energy transfer. So फर्स्ट क्या हो रहा है कि एटम्स में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग गिविंग इट्स रोल इन द कंडक्शन. और जो मॉलिकुलर लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिकुलर लैटिस वाइब्रेशन है, एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा है अपनी जगह पर, जैसे उसको एनर्जी और ज़्यादा दे रहे हैं तो और ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, तो उसके वाइब्रेशन के कारण सेकेंड मॉलिक्यूल, तो ऐसा है फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. सो जितने ज़्यादा ये वाइब्रेट हो रहे हैं उतना ज़्यादा सेकेंड वाला वाइब्रेट हो रहा है. ओके, सो उसके कारण भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. बट इसमें मेन पार्ट किसका है, तो इफ परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड 30% इज ड्यू टू मॉलिकुलर लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर. सो जनरली एक ट्रेंड भी हम देखते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा या फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा. ओके, सो जनरली इफ़ यू सी द ट्रेंड, फ्री इलेक्ट्रॉन एज इंक्रीजेज. ओके, सो वो एक गुड कंडक्टर है. गुड कंडक्टर, अब मैं आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इन सब की डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा बिकॉज नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज. ओके, सो ये बेइज्जती है एक तरीके से. तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कंडक्शन लेवल भी इंक्रीज होता है. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिल्वर. सिल्वर इज़ अ वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं एंड साथ में वो बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर भी है. सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो कॉपर दैट वी आर यूजिंग, एल्यूमिनियम वी आर यूजिंग. ओके, सो हमारे जो घर में वायर्स होती हैं वो किसकी होती हैं, जरा प्लीज़ चेक कीजिएगा. तो वो एक अच्छा मेटल होता है. सबसे फर्स्ट जो मेटल होता है वो एक, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं ज़्यादा एंड साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे फ्री हैं तो उसके साथ क्या होता है कि वो गुड कंडक्शन है. किसमें, थर्मल में तो है ही, साथ में इलेक्ट्रिकल भी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र. सो लेट्स सी sometimes these type of question asked in the engineering services. So you need to remember that for silver the value of K, we will talk about K afterward. K is thermal conductivity. Okay, thermal conductivity, this is 410 watt per meter Kelvin. Just remember this, we will talk about this. Then for copper it is around 385. Gold 315, then aluminium 200 and then steel. Okay, so this is 17 to 45, depends upon the steel. Okay, because this is an alloy. So एक और चीज़ आप देखेंगे that K of pure metal is greater than K of alloy. Okay, so if you have studied the material science, in material science you must have seen that as the percentage of impurities increases, okay, so there is a resistance to flow of electron. So resistance to flow of electron है, so उसके कारण क्या होगा, if electron is not flowing means conduction is not happening either in thermal or in electrical. So प्योर मेटल का जो होता है वो ज़्यादा होता है. सो अगर आपको बोलें कि कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है या ब्रास का ज़्यादा है, प्योर आयरन का ज़्यादा है, स्टील का ज़्यादा है, सो यू मस्ट नो दिस टाइप ऑफ आंसर्स. ओके, जैसे जैसे हम परसेंटेज ऑफ एलॉयज बढ़ाएंगे, दो ही एलॉय हैं लेकिन परसेंटेज उसमें एक में कम एक में ज़्यादा है, तो जिसमें परसेंटेज कम है उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा. ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ तो समझ आए कि कंडक्शन इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच जनरली ऑकर इन सॉलिड्स due to temperature difference associated with molecular lattice vibrational energy transfer and also by free valence electron transfer. So यहाँ पर मैंने जो अभी एक definition बोला, please listen it, इसमें मैंने कुछ चीज़ें बोली. फर्स्ट वन इज सॉलिड बोला. वाई मैंने सॉलिड क्यों बोला, सॉलिड में क्या होता है
कि चीज़ें बहुत पास पास होती हैं, राइट, डेंसिटी ज़्यादा होता है। यही अगर गैस में देखें तो काफ़ी दूर होता है, लिक्विड में इन बिटवीन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है ईजी है। ओके, सेकंड, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल ट्रांसफ़र ईजी है क्योंकि चिपकी हुई चीज़ें हैं। ओके, सो अगर यही हम लिक्विड में जाएंगे, सो लिक्विड में सॉलिड से डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल या टू एटम हम बोलेंगे तो वो ज़्यादा है। ओके, सो दैट्स वाई मैंने सॉलिड बोला, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड ऑल इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर्स आर ऑल्सो इज जनरली गुड कंडक्टर। ओके, सो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में घुमाते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। ओके, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ओके, एक्सेप्शन मैंने बोला मेटल्स, जनरली मेटल्स है, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स में हम जनरली देखते हैं कि वो मैंने आपको बोला कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो गुड कंडक्टर ऑफ थर्म हीट भी है। ओके, सो क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बट एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड अब कार्बन का एक फॉर्म है, राइट, बट यहाँ पर ये मेटल भी नहीं है। पर अगर इसका जो के है उसकी वैल्यू है 2300, भाई साहब सबसे ज़्यादा। ओके, यहाँ पर हम जब सिल्वर का देखा था, सिल्वर इज़ 410, दिस इज़ अराउंड 5 टाइम्स टू 5.5 टाइम्स मोर, राइट। यहाँ पर ये हाईएस्ट इसलिए है बिकॉज इसके ऊपर कम से कम भी तो 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लीज़ चेक द प्रीवियस ईयर। बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर लैटिस अरेंजमेंट। सो आपको ये वाला जो लाइन है ये याद रखना है, वाई डायमंड इज हैविंग सो लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो ये हमने पढ़ लिया। सो इसके बाद में हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ, मैंने आपको जैसे बताया था कि के, व्हाट इज के। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी। इस टर्म को थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। ओके, सो के इज अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, ऑफ मटेरियल, विच एवर मटेरियल you are studying, K is the thermophysical property of that material which tells about the ability of the material. It talks about the ability of the material to allow the heat energy to get transferred or to get conducted through the material. Okay, so अगर कोई मटेरियल है, मटेरियल A and मटेरियल B, in material 1 the heat energy get conducted or get transferred more fast or more rapidly than B. so हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं K of A is greater than K of B. ओके, सो ये चीज़ें, ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ पर इंसुलेटर्स है जिसके बारे में हमें आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, व्हाट इज इंसुलेटर एंड व्हाट आर दीज थिंग्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू हीट कंडक्शन इन गैसेस। ये हमने पढ़ लिया हीट कंडक्शन इन सॉलिड्स। अब हीट कंडक्शन इन गैसेस। ओके, सो हीट कंडक्शन इन गैसेस, लेट्स सी, दिस इज हाई टेम्परेचर plate, there are two plates, high temperature plates, and this is low temperature. okay, so यहाँ पर हमने बीच में एयर रख दिया है, these are air molecules. ओके, सो यहाँ पर जो कंडक्शन होगा, मतलब हीट ट्रांसफर जो होगा कैसे होगा, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। दिस मॉलिक्यूल गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द हाई टेम्परेचर प्लेट, इट गेट एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इसने इस प्लेट से ले लिया, देन इट विल कम बैक एंड इट विल टच दिस मॉलिक्यूल, this molecule will touch this molecule, this molecule will touch this molecule, this molecule will touch this molecule, and this molecule will collide with the lower temperature, and at collision there is a transfer of energy. So transfer of energy is from energy body which is having more energy will transfer its energy to
एनर्जी, द बॉडी हैविंग लोअर एनर्जी. सो अगर ये स्टैगनेंट है, मीन्स ये डेल्टा डिस्टेंस है एंड ये स्टैगनेंट एयर है, नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लोइंग एयर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल assumption is this is stagnant air. ओके, सो इस टाइप से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. ये आप जनरली देख सकते हैं कि एक वॉल है जो बहुत गर्म है. ओके, जैसे अगर आप कभी प्रोडक्शन में गए होंगे एंड काफ़ी बड़े बड़े फर्नेस होते हैं तो उसकी वॉल से काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी आती है, अराउंड 40-50 डिग्री सेल्सियस का बाहर होता है इतने सारे लेयर्स के बाद भी. सो उसके थ्रू जो एयर आती है उसके ऊपर से, अगर आप सामने खड़े हैं वहाँ पर से 5 मीटर तक भी, तो एक तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होता है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट. बट एक जो एयर उससे टच होकर आ रही है वो भी दूसरे दूसरे एयर से टच होकर आप में अगर टच होगी तो आपको गर्मी महसूस होती है, यू विल फील द हीट. सो यहाँ पर जो होता है, जो चीज़ यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई वेलोसिटी रहेगी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि हाई एनर्जी पे है. हीट ट्रांसफ़र में आप कैसे बता सकती है किसमें ज़्यादा हीट है? सो टेम्परेचर इज़ अ बेसिक टर्म. यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो लोअर टेम्परेचर पे है एंड लो वेलोसिटी पे है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी है. ओके, जैसे आपके पास आपके पापा ने एक दिन 5,000 रुपये दे दिए, सो हम बहुत खुश होते हैं, वी आर वेरी हैप्पी दैट वी विल बाय दिस थिंग्स, वी विल स्पेंड दिस और वी विल ईट समवेयर. और जब वो, तब हमारा जो एंट्रोपी होता है, जो कहते हैं हमारी एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, हम कहीं भी जा सकते हैं, शूज़ खरीद सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं. बट व्हेन वही पैसे जब खत्म हो जाते हैं, मीन्स दैट एनर्जी, दैट मनी इज एनर्जी, इज इन द एनर्जी फॉर्म, व्हेन इट गेट मीन्स लॉस्ट और इट गेट यूज्ड, सो हमारा एनर्जी कम हो जाता है. सो हमारे पास रुपये कम हो गए, मीन्स हमारा जो टेम्परेचर है कम हो गया एंड वी हैव लो वेलोसिटी. फिर हमें हमारी औकात पता चल जाती है. ओके, सो यहाँ पर ये एक फंडा होता है कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है. ओके, सो नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस है, अगर आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो वहाँ से एक स्टेटमेंट आता है दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. वाई वी आर टॉकिंग अबाउट रूट मीन, दिस इज सी इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, या क्लास में भी हम जब 50 लोग हैं तो सबके मार्क्स को एवरेज मार्क्स की तरह हम शो करते हैं कि दिस क्लास इज हैविंग दिस मच ऑफ एवरेज मार्क्स. सो यहाँ पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में, सो वी विल टॉक अबाउट द रूट मीन स्क्वायर. इट इज़ अ मीन बट इट इज़ नॉट द डायरेक्ट मीन दैट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एवरेज, दैट इट इज़ नॉट द एवरेज, इट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ओके, एंड दैट इज proportional to square root of temperature. So you can say that as temperature increases, velocity of gas increases. So velocity of gas is high, means उसमें एनर्जी ज़्यादा है. ठीक है, सो ये एक फंडा है यहाँ पर जो कि देख सकते हैं. अगर हम एयर की बात करें, ओके, यहीं पर अगर हम एयर की बात करें तो एयर का जो के होता है, के मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी, वो अराउंड 0.026 वाट पर मीटर केल्विन होता है. ये एट द रेट रूम टेम्परेचर है. ओके, सो ये चीज़ आप देखेंगे कि के ऑफ एयर इज लेस देन, सॉरी, के ऑफ एयर काफ़ी कम है. अगर आप मेटल से देखेंगे तो इसको हम बैड कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, या एज ए इंसुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एयर, वेपर, ये सब चीज़ें कम होती हैं, इनका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है. ओके, सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ देयर टेम्परेचर. वाई? एज टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द के, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. Because of higher temperature, greater molecular activity may result in more number of collision per unit time and hence more moment transfer rate. ओके, सो इस डेफिनेशन को जो मैंने पढ़ा इसको प्लीज़ सुनिए. यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है. हीट ट्रांसफ़र जो हमने यहाँ पर पढ़ा, हीट ट्रांसफ़र वो हो रहा है कोलिजन के कारण. कौन से कोलिजन, कौन से लेवल पर हो रहा है? मॉलिकुलर कोलिजन के कारण. ओके, एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट एट वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वेलोसिटी इंक्रीजेज, राइट? Velocity increases, so more number of collision at molecular level increases. So collision means more moment of
more momentum transfer means more energy transfer means more heat transfer. यहाँ पर energy का मतलब क्या है? Heat. We are talking about the heat. So as we increase the temperature, velocity increases. Velocity increases means collision rate increases. Collision rate increases means more momentum transfer. More momentum transfer means more energy का transfer. And here energy transfer मतलब ज़्यादा heat transfer हो रहा है. If heat transfer एक सिचुएशन में हीट ट्रांसफर कम है और एक सिचुएशन में हीट ट्रांसफर ज़्यादा है, तो जिस सिचुएशन में हीट ट्रांसफर ज़्यादा है मीन्स वहाँ पर हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा है. सो वी कैन से दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टिविटी ऑफ के इंक्रीजेज. तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखेंगे, इनके बीच में एक बहुत ही छोटा सा एंड प्यारा सा ग्राफ है, देखेंगे. सो दिस इज के ऑफ गैस एंड दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ओके, सो इफ वी प्लॉट द ग्राफ यू विल सी ये तीन ग्राफ है. दीज ऑल थ्रीज आर एयर में सॉरी गैशियस फॉर्म. सो फर्स्ट वन इज H2, helium and air. So why hydrogen is having a more steeper curve? या हाइड्रोजन बहुत, जैसे हम एक ही टेम्परेचर पे देखें, जैसे इस टेम्परेचर पे देखें, सो कंडक्टिविटी ऑफ के इज मोर देन कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन हीलियम एंड एयर. ओके, सो यहाँ पर फंडा ये होता है कि हाइड्रोजन जो है उसका वेट बहुत कम होता है. ओके, मास कम है, एनर्जी आप दे रहे हैं तो वेलोसिटी ज़्यादा. काइनेटिक एनर्जी का फंडा हाफ mv² इक्वल्स टू समथिंग, देन मास इज लेस देन वेलोसिटी इज हाई, राइट. सो हाइड्रोजन के केस में मास कम है विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम एंड एयर, तो वहाँ पर वेलोसिटी भी हाई होगी विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम एंड एयर. एज वेलोसिटी इंक्रीजेज collision rate increases, collision rate increases, momentum transfer increases, momentum transfer increases, energy transfer increases, and energy transfer increases, heat transfer increases. And as heat transfer is high, we can say that conductivity of that material, that gas, और किसी का भी आप स्टडी कर रहे हैं, इज हाई. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है. तो एक मैं और आपको बता देता हूँ. एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, के मीन्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, Cp जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो गैस कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी मीन्स हीट कैरिंग कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट बोलते हैं कि अगर उसको किसी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो Cp होता है स्पेसिफिक हीट. देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इंक्रीजेज. डेंसिटी डिक्रीजेज. सो टेम्परेचर का इफेक्ट गैस के ऊपर, ये गैस के ऊपर है. ओके, अब हमने पढ़ लिया सॉलिड, हमने पढ़ लिया गैस. अब जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होगी. सो आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड में जो हाईएस्ट होता है वो होता है K ऑफ Hg मर्क्यूरी, दैट इज 8.43 वाट पर मीटर केल्विन, इसलिए हम उसको लिक्विड मेटल भी बोलते हैं. तो वैसे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लिक्विड मेटल अगर नाम कहीं पूछा जाए तो वो होता है आपका मर्क्यूरी. इसलिए हम मर्क्यूरी को थर्मोमेट्रिक फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि हम एज ए थर्मोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं, उसका हीट ट्रांसफर अच्छा होता है. यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, कि हमने पढ़ लिया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के, राइट, फॉर गैस. पर सॉलिड के केस में क्या होता है भाई? इन गैस केस as temperature increases thermal conductivity increases, but in solid as temperature increases thermal conductivity decreases. ये अपोजिट होता है. क्यों? अच्छा, चलो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. छोटा सा एग्जांपल है. अगर लेक्चर का स्टार्टिंग आपको याद होगा तो हमने दो चीज़ों से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट. एक इलेक्ट्रॉन का, एक लैटिस वाइब्रेशन. ओके, so as temperature increases, more number of free electron will come into the picture. So number of free electron increases, lattice vibration also increases. Okay, so यहाँ पर होता क्या है, एक चीज़ और, कि यहाँ पर 70% of heat transfer is by electron transfer and 30% of heat transfer is by lattice transfer, lattice vibration. Okay, so अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को कम कर दूँ और लैटिस वाइब्रेशन को ज़्यादा कर दूं, तो अगर ओवरऑल के कम हो जाता है, कैसे देखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीजेज, एंड
मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को अगर आप रोक सकें तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं होंगे कैसे कुछ ट्रांसफर होगा? ओके, ना वो थर्मल फॉर्म में होगा, ना वो आपके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। सो होता ये है कि जब लैटिस बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ पर वो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर, सो दे मे कम बैक। ओके, सो इनका जो ट्रांसफर है वो हिंडर्ड हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट जो ओवरऑल के है, ओवरऑल के डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फॉर सॉलिड as temperature increases thermal conductivity decreases. Okay, so in the next lecture we will talk about the convection and radiation there and their basic topics and about the laws governing them. Okay, so तब तक के लिए bye, take care.